गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो पहले जो हमने फर्स्ट इसी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट देखा पार्ट ए, वी अंडरस्टूड द लाइक बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप is a relation between the persons to share the profits from the business carried on by all or any one of them acting for all as per section 4 of Indian Partnership Act 1932. It's a business, it's an association of persons, minimum 2% to maximum 50 persons. It's an association of persons to share the profits, means there is an agreement to share the profit. So first feature the association of persons, second feature the agreement, third है to share the profits from the business, and fourth the right association of persons, agreement to share the profits, ये दो आ गए एक्चुअली। फिर था from the business carried on by all or any one of them acting for all, so it's about mutual agency। यहाँ पे जो भी तुम्हारा पार्टनर है he plays dual role, he is principal as well as agent at the same time। समझ में आ रहा है? सो ड्यूअल रोल प्ले करता है प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स एक्ट, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर्स एक्ट, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो व्हेन टू और मोर पर्सन्स जॉइंट हैंड, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड दे डू बिजनेस, दे the purpose is acquisition of gains and to share those gains between them। जब ये पर्पस रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा? पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा, बराबर। फिर हमने देखा था पार्टनरशिप बिजनेस में वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक एक्टिव पार्टनर था, द पार्टनर who takes active part into the day to day management of the business, उसको वर्किंग पार्टनर भी बोलते हो, एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। दूसरे टाइप का पार्टनर था स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर, the partner who contributes only capital but he does not take part in the day to day management। वो क्या day to day management में part नहीं लेता है, जो चल रहा है वो चलने देता है, right? So he is a sleeping partner, he is dormant partner। then मतलब the general public does not know he is a partner। समझ में आ रहा है? लोगों को नहीं पता होता कि ये पार्टनर है, his name is not revealed because he is not the face of the organization। वो right, he doesn't take part in the like activities of the business। So that is sleeping partner or dormant partner। Third type is a minor partner। If you are admitted minor, who is a minor? Who has not attained the age of majority, that is 18। If you are admitted minor into partnership for the benefits, right, then such partner is called as minor partner। Minor की liability limited होती है, minor shares only profits, minor never shares losses। But minor कभी ना कभी major होगा, and when he becomes major, he has 6 months to decide whether he want to become a full-fledged partner or he wants to discontinue the partnership, because he can now take his own decisions। Once you become major, you can take your own decisions। So 6 months के भीतर, once you become major, within 6 months you have to take the call। If you become full-fledged partner, your liability will become unlimited, right? You have to also share losses। मतलब जब माइनर थे liability limited थी, and you have to share only profits and not the losses। मेजर होने के बाद if you decide to become the partner, तुम्हारी liability unlimited होगी and you will also share losses। मतलब तुम normal partner हो जाओगे। and if you 6 months में आप call नहीं लेते हो, तो by default it is expected that you have become the partner। तो 6 months के भीतर तुम्हें call लेना है कि बनना है या नहीं बनना है। if you don't want to become, then tell everyone that you don't want to continue as a partner। If you don't like convey that, you automatically become partner। अगर आपको पार्टनर होना है तो या बोल दो कि मुझे पार्टनर होना है, या कुछ मत बोल देना तो भी पार्टनर हो जाओगे। बट इफ यू डोंट वांट टू बिकम पार्टनर, देन स्पेसिफिकली कन्वे देम, उसको नोटिस देना होता है। माइनर हैज टू गिव पब्लिक नोटिस, ऐसे बोलते हैं उसको। सो वो आ गया सेक्शन 30 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, जो पूरे माइनर के बारे में डिस्कस करता है। बड़ा सेक्शन है, माइनर्स के राइट्स, राइट। माइनर होगा तब क्या होगा, जब वो मेजर लाइक व्हेन ही अटेन्स मेजॉरिटी को क्या होगा, ये सब चीजें तुम सेक्शन 30 में सीखोगे इन द इंडियन पार्टनरशिप 1932। वो लॉ में आ जाएगा इन लाइक फाउंडेशन। बट ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए।
फिर आता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तब मैंने क्या बोला पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में, द पार्टनर हु शेयर्स ओनली प्रॉफिट्स, ही डज नॉट शेयर द लॉसेस एज पर एग्रीमेंट बिटवीन देम। ऑब्वियसली कुछ तो रीजन होगा कि किसी को आप खाली प्रॉफिट्स दे रहे हो लॉसेस नहीं दे रहे हो, कुछ तो रीजन होगा, रीजन कैन बी एनीथिंग, बट डीड में लिखा है मतलब एवरीवन इज एग्रीड, राइट, बिकॉज डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल। ए बी सी में से बी विल शेयर ओनली प्रॉफिट्स, तो ए मस्ट हैव एग्रीड एंड सी मस्ट हैव एग्रीड, कुछ तो रीजन रहेगा ना। सो क्या रीजन होगा गॉड ओनली नोस, बट एक गारंटी है कि ऑल हैव एग्रीड दैट बी विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट्स ओनली इन माय एग्जांपल। समझ में आ रहा है? ऐसे आप अकेले मन से कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, ईच एंड एवरी पेज हैज टू बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, एंड लास्ट वाले पेज पे विद देयर एड्रेस यू हैव टू साइन, विद विटनेसेस यू हैव टू साइन। मतलब जब ये पार्टनर्स डीड साइन करते हैं ना, वहां पे विटनेसेस भी प्रेजेंट होने चाहिए। जब आप एक प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हो, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आपको बायोमेट्रिक्स लेते हैं, पता है ना, आपके फोटो लेकर रेटिना स्कैनिंग होता है, थंब स्कैनिंग होता है, आपका फोटो लेते हैं, देयर इज अ विटनेस एज वेल। समझ में आ रहा है? वो इंडेक्स 2 बनती है। जब आप फ्लैट वगैरह लेते हो ना, इंडेक्स 2 बनती है। जब आप लैंड लेते हो तो 7/12 एक्सट्रैक्ट बनता है, 7/12। जब आप लैंड लेते हो तब 7/12, दैट इज 7/12 एक्सट्रैक्ट। एंड जब आप फ्लैट वगैरह लेते हो ना, इंडेक्स 2 होता है। क्या? इंडेक्स 2 which talks about the title in the property, ownership in the property। लैंड लोगे तो क्या बनता है? 7/12। सुना होगा ना तुम लोगों ने 7/12 कोरा या नहीं है, मराठी में बोलते हैं कोरा है, मतलब उसमें कोई लोन नहीं है। समझ में आ रहा है? सो हम 7/12 चेक करते हैं, वो लैंड के लिए रहता है। एंड अगर आप घर वगैरह लेते हो तो उसके लिए क्या रहता है? इंडेक्स 2। ये पता होना चाहिए, कमर्शियल टर्म्स है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, बराबर? 5% स्टैम्प ड्यूटी, 5 कभी 6% है। अभी चेक करना होगा अभी रिसेंट क्या है, राइट? टाउनशिप्स के लिए 5% है, एंड आई थिंक अदर देन टाउनशिप्स इट इज 6%। टाउनशिप्स लाइक एग्जांपल लाइक मगरपट्टा, एमिनोरा, दे आर द टाउनशिप्स, वहां पे 5% स्टैम्प ड्यूटी है। एंड अगर आप टाउनशिप्स में नहीं लेते तो 6% स्टैम्प ड्यूटी ऐसे एक्स्ट्रा है। देन मतलब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, विटनेस के अंडर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वैसे ही जब पार्टनरशिप डीड साइन होती है ना, तो विटनेसेस होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ऑलवेज मतलब आप किसी को फोर्सफुली साइन नहीं करने के बोल सकते। पार्टनरशिप फोर्सफुली नहीं हो सकती, पार्टनरशिप विलफुली हो सकती है, बिकॉज हमें चाहिए राइट कंसेंट, वी नीड कंसेंट। बाद में कर जाएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? हमें चाहिए क्या? कंसेंट। बिकॉज विदाउट फ्री कंसेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप किसी के साथ शादी करें, उसकी गन रख के, दैट इज नॉट वैलिड कंसेंट। उसको कोयर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोयर्शन। कोयर्शन मतलब क्या? आप फोर्सफुली उसकी कंसेंट ले रहे हो, उसको टेक्निकली लॉ में कोयर्शन बोलते हैं। अगर मैं तुम्हारी कंसेंट लेता हूं फोर्सफुली, इट इज नॉट फ्री कंसेंट, इट इज कॉज्ड बाय कोयर्शन। तो आप किसी को पार्टनरशिप में फोर्सफुली नहीं लेके आ सकते कि भाई तू हमारा पार्टनर ही बन जा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर उसकी फ्री कंसेंट है तो ही वो क्या बनेगा? पार्टनर बनेगा। कोएर्शन के थ्रू किसी को पार्टनर नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली जब साइन होता है तो देयर आर विटनेसेस कि एक्चुअल में ये फ्रीली साइन कर रहे हैं, नहीं इसकी कंसेंट फ्री है, नहीं आप उसको फोर्स कर रहे हो। इफ ही हैज नॉट एग्रीड ऑन सम क्लॉज, ही मे आस्क कि ये चेंज कर दो, बिकॉज इफ ही हैज टू साइन मतलब ही हैज एक्सेप्टेड। सो ऑब्वियसली जब पार्टनरशिप का ड्राफ्ट बनता है ना, तो सब बैठेंगे, एक एक क्लॉज पे डिस्कशन होगा। Try to understand. If they have agreed, then only they will proceed ahead. समझ में आ रहा है? So ये चीज है, try to understand. ये अरेंज मैरिज है जिसमें you will discuss each and everything. समझ में आ रहा है? ये लो मैरिज नहीं कि चल जाएगा, ऐसे होगा तो चलेगा, वैसे होगा तो चलेगा, नहीं। You have to do the business. समझ में आ रहा है? तो each thing is decided. हर क्लॉज के थ्रू जाएंगे, एग्रीड है तो ही सब एवरीवन साइन। अगर किसी को एग्री नहीं तो भाई विल साइन आइडियली। तो राइट जब वो तो डॉक्यूमेंट साइन होता है ना, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड डीड में ये डिफरेंस है। एग्रीमेंट जो राइटिंग में है एंड जो स्टैम्प है, मतलब स्टैम्प पेपर पे, उसको डीड बोलते हैं। डीड मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट रहेगा, यू कैन शो हाँ ये हमारी डीड है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। तुम लोगों ने जो डिसाइड किया वो ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है ना, या तुम्हारे एक्ट के थ्रू भी समझ में आ सकता है कि तुम पार्टनर्स हो। बट उस एग्रीमेंट को इट इज बेटर टू राइट डाउन, एंड वो स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, उसको डीड बोलते थे। ये मैंने बोला था,
So deed is written agreement which is also stamped and duly signed by all partners in the presence of witnesses. समझ में आ रहा है? वो डीड होता है. फिर वो डीड के हमने कोई क्लॉजेस देखे थे जो हमारे लिए काम के, अकाउंटेंट के लिए. Like if deed provides for interest on capital, then we will give interest on capital, else we will not give interest on capital. अगर deed is silent, हमने देखा था एक्चुअली सेक्शन 13 है of the Indian Partnership Act. Section 13 of Indian Partnership Act talks about if deed is silent, then what will happen. Section 13 talks about rights and liabilities of the partners. Try to understand. Partner के rights क्या होते हैं and partners के liabilities क्या होते हैं. वो section 13. There are many sections. उसमें से section 13 इसके बारे में बोलता है. If deed is silent, क्या बोला मैंने? If deed is silent, then ठीक है, no partner is entitled to interest on their capital. पार्टनर ने कैपिटल दिया है हमें, बट हम उस पर इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं देंगे. No partner, try to understand, no partner is entitled to any remuneration. पार्टनर को कोई सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी. राइट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैन नॉट बी चार्ज बाय द फर्म. फर्म उनके ड्रॉइंग्स पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी क्या? नहीं. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी एट 6% per annum. It is a simple interest. अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उस पे हम 6% क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे. उसके बाद क्या कि if PSR is not decided, then they are equal partners. Their ratio is equal. ये 5 क्लॉजेस हमारे काम के. एक्चुअली इसमें से जो पार्टनर का लोन है ना, 6% इंटरेस्ट होना चाहिए ना पार्टनर के लोन पे. कितना होना चाहिए? 6% per annum. Are you getting my point? ये जो क्लॉज है ना, ये महाराष्ट्र बोर्ड में कोई यूज का नहीं है. बिकॉज भले ही पार्टनर का लोन देंगे बट दे डोंट कैलकुलेट इंटरेस्ट. आई डोंट नो व्हाई. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, पार्टनर के लोन पे तुमने 6% के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए ना. बट महाराष्ट्र बोर्ड क्यों कैलकुलेट नहीं करता, उनको ही पता है. आइडियली यू शुड कैलकुलेट. जब तुम सीए फाउंडेशन में करोगे ना, यू विल कैलकुलेट 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड में वो कैलकुलेट क्यों नहीं करते, भगवान को पता. लिखा है फर्स्ट यूनिट में कि 6% इंटरेस्ट है, बट बाकी यूनिट्स में कहां पे भी इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया उन्होंने. ठीक है. सो ये चीज है. इवन राइट, हमने देखा था टाइप्स ऑफ कैपिटल्स. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स. वन इज फ्लक्चुएटिंग एंड अदर इज फिक्स्ड. इफ नथिंग इज एग्रीड, पार्टनर्स फॉलो विच कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में each partner is represented by one capital account in his book, in the books of the firm. Ram, Sita are the partners, so Ram का capital रहेगा and Sita का capital रहेगा, and their capital will be always changing. Why? Because we record both recurring as well as non-recurring transactions between firm and the partner in the capital account only. Non-recurring में मैंने एक example दिया था. Non-recurring में बोला था कि addition of capital. जब partner capital business में लाता है, it is a non-recurring transaction. एंड रिकरिंग में हमने बाकी सब ट्रांजैक्शन लाइक ड्राइंग्स एवरी टाइम होती रहेगी, एवरी ईयर होती रहेगी. उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी एवरी एट द एंड ऑफ ईच ईयर कैलकुलेट करोगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एट द एंड ऑफ द ईयर जब तुम P&L करोगे तब कैलकुलेट करोगे. राइट. सैलरी टू पार्टनर, ये सब एडजस्टमेंट कब होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर. इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब होगा? जब हम अकाउंट्स फाइनलाइज करेंगे. राइट. सैलरी कब फाइनल होगी? जब हम ईयर कंप्लीट होगा तब. कमीशन कब फाइनल होगी? जब ईयर कंप्लीट होगा तब. So all these adjustments are done at the end of the year each year. इसलिए they are recurring. So recurring and non-recurring all transactions are recorded in right a capital account, and therefore the balances of capital accounts keeps on fluctuating, changing, and therefore we call it as which method? Fluctuating capital method. समझ में आ गया? Basically दूसरी मेथड है जो सॉर्ट करती है. Non-recurring transactions will be recorded in the capital account and recurring transactions will be recorded in their current account. हमने उसको bifurcate कर दिया, that's it. So non-recurring transaction additional capital will be recorded in the capital account. मतलब capital fix रहेगा. That capital won't be changed. Generally हम daily basis पे, yearly basis पे capital नहीं लाते हैं. Generally जब भी जरूरत होगी तब लेके आएंगे. Generally we start with the capital and उसके बाद हम business करते हैं, profit कमाते हैं, तो generally we don't need capital. हाँ, जब capital की जरूरत होगी तब लेके आएंगे. हम डे टू डे बेसिस पे नहीं लेके आते, ईयरली बेसिस पे नहीं लेके आते. सो दैट इज अ नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन जो हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. एंड बाकी सब ट्रांजैक्शन हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे?
करंट अकाउंट में, तो वहां पे किसका बैलेंस चेंज होता रहेगा, करंट अकाउंट का। फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा, सेम, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, बट एक और चीज होती है, ध्यान देना। एक होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड दूसरा होता है ड्रॉइंग्स। देखो तुमने कैपिटल डाला है, कभी ना कभी तुम विड्रॉ करोगे, देखो। सो वो भी एक कंसेप्ट है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। आप लोग से दोनों में फर्क क्या आ गया फिर, ड्रॉइंग्स में भी हम पैसे निकाल रहे हैं, पार्टनर इज टेकिंग अवे सम मनी ऑफ फ्रॉम द फर्म, एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल में वो पैसा लेके जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज नॉट ए कॉमन फिनोमिना, इट्स एक्सेप्शन। कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, इट्स नॉट ए रूटीन थिंग, इट्स ए सीरियस थिंग, इट्स ए अनकॉमन फिनोमिना, इट्स एक्सेप्शनल फिनोमिना। समझ में आ रहा है? एंड ड्रॉइंग्स रूटीन है। ड्रॉइंग्स क्यों करता है पार्टनर, पर्सनली, लेकिन ड्रॉइंग्स उसके पीछे लॉजिक क्या है, ड्रॉइंग्स के पीछे लॉजिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्रॉइंग्स के पीछे लॉजिक है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप मुझे प्रॉफिट देने वाले हो, मुझे ईयर के एंड में प्रॉफिट देने वाले हो ना, तो आई विल स्टार्ट टेकिंग अवे प्रॉफिट्स ऑन, लाइक मैं पहले से वो प्रॉफिट लेके जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड कि मैं 10 लाख का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कमाने वाला हूं, तो क्या उस 10 लाख को मैं धीरे धीरे लेके जा सकता हूँ, एवरी मंथ सपोज 70,000 70,000 70,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको बोला कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर देने वाला हूँ, तो तुम बोलोगे सर 10 लाख एट द एंड ऑफ ईयर देने वाले हो, तो आप क्या करो 70,000 एवरी मंथ देना, बाद में एडजस्ट कर लो। सो ड्रॉइंग्स इज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स इज विड्रॉवल्स अगेंस्ट द प्रॉफिट। कहां पे तो लिख लेना, ड्रॉइंग्स इज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। ड्रॉइंग्स हम इनडायरेक्टली प्रॉफिट्स को निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? किसके लिए? खुद के पर्पस के लिए। ड्रॉइंग्स इज विड्रॉवल्स ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स इज विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर मिलने वाले हैं, बट तुम पहले ही वो क्या कर लेते हो, निकाल लेते हो। आइडियली है ना, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता है कि हम 10-10 लाख का सबको प्रॉफिट कमाने वाले हैं, तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि हम पहले ही थोड़े थोड़े निकालते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर जो देखेंगे वो होगा। कैपिटल ड्रॉइंग माइनस होने वाला है, प्रॉफिट ऐड होने वाला है, तो कैपिटल ऑलमोस्ट मेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही है। सो ड्रॉइंग्स, अगर आप कोई टेक्निकली आपको पूछते हैं ना ड्रॉइंग्स क्या होता है, आप क्या बोलते हो? ड्रॉइंग्स इज अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ये दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। 11 की डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ड्रॉइंग्स इज, आपने बोला विड्रॉल ऑफ resources from the firm, assets from the firm for personal use against the profit. Definition कब complete होगी? If that is against the profit. Capital withdrawal is not against the profit. आप बिजनेस में पैसा लेके जा रहे हो, क्रेडिटर्स वगैरह टेंशन में आ जाएंगे अगर आप पैसा निकालने लगे तो। मतलब ऐसा कि आप बिजनेस कर रहे हो, बाकी लोगों का पैसा देना बाकी, आप आपका पैसा निकाल के लेके जा रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में बवाल भी मच सकता है, मतलब आप छोड़ रहे हो बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप एग्जांपल, आपने किसी को किसी बिजनेस में पैसे लगाए, राइट? आपने क्रेडिट पे गुड्स दिए, आपका 10 लाख का क्रेडिट है उसके पास, वो तुम्हारा डेटर है और वो बिजनेस स्टॉप करने का सोच रहा है, राइट? तो आप क्या सोचोगे, राइट? आपके दिमाग में क्या आएगा? ये बिजनेस बंद कर रहा है तो कैपिटल निकाल रहा है, मतलब क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे केसेस में क्रेडिटर्स कैन अप्रोच टू द कोर्ट, ये हो सकता है। तो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल इज नॉट कॉमन फिनोमेनन, बट अगर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल होता है ना, वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ना कि करंट में, बिकॉज इट इज नॉट ड्रॉइंग्स। वो अनकॉमन है, वो नॉन रिकरिंग है। तुम्हारे सिलेबस में ऐसे ट्रांजैक्शन है, वो फाउंडेशन में विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है? सो विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग होता है, ड्रॉइंग्स अलग होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? बट जस्ट इन्फॉर्मेशन 12th में नहीं है, बट ये पता होना चाहिए। ऐसे भी चीज होती है कि ओनर कभी कभी कैपिटल लेके जाते हैं, दैट इज वेरी सीरियस थिंग। मतलब मे बी वो रिटायर होना चाहता होगा, या दूसरा ओनर्स डजंट हैव कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस, वो पैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? और दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट नाउ। हो सकता है ना, इट्स वेरी सीरियस थिंग फॉर द बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे केसेस में क्रेडिटर्स जिन्होंने लोन्स दिया है वो टेंशन में आ जाते हैं। सो इट्स नॉट कॉमन थिंग, इट्स ए नॉन रिकरिंग, इसलिए वो कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? अगर है तो कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है?
सो ये था तुम्हारा करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अंडर फीस कैपिटल मेथड। यहां तक हमने डिस्कस किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन समझा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन समझा, सैलरी वगैरह तो देते तो उसमें बड़ा कैलकुलेशन कुछ नहीं, कमीशन वगैरह इट्स वेरी सिंपल बिकॉज ऑल दिस एडजस्टमेंट विल बी द पार्ट ऑफ आवर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये पूरा था तुम्हारा चैप्टर 1 का पार्ट ए बोल सकते हो। पहले वाले सिलेबस में इसको 2 में डिवाइड किया था, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जो अब एक ही है, चैप्टर 1। ठीक है, so let's start with the like the second part of this chapter, final accounts of partnership firm। एक्चुअल में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट does not give any format of the final accounts। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में फॉर्मेट ही नहीं है कि किस फॉर्मेट में तुम्हें फाइनल अकाउंट्स करने। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कंपनीज एक्ट में देयर इज अ शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 है जो कंपनीज के बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देता है, उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनती है। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखो, उसी फॉर्मेट में मिलेगा आपको। आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने आपको दिखाया भी बहुत बार 11th में, इफ यू रिमेंबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टी फॉर्मेट में नहीं होता था, याद है? इनकम माइनस एक्सपेंस ऐसे लिखते थे, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे टी फॉर्मेट में लिखते थे। पहले लिखते थे लायबिलिटीज और नीचे लिखते थे एसेट्स। मैंने रिलायंस की बैलेंस शीट, बहुत सारे मैंने बैलेंस शीट तुम्हारे साथ डिस्कस भी किए थे, इफ यू रिमेंबर। दैट फॉर्मेट इज गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013। Schedule 3 of the Companies Act gives the state format of final accounts of the companies. So every company has to follow that format. थोड़े मोटा मोटी चेंजेस करते हैं, लाइक कोई लोग लायबिलिटीज पे लिखते हैं बाद में एसेट्स लिखते हैं, कोई लोग एसेट्स पे लिखते हैं बाद में लायबिलिटीज, वो चल जाएगा, बट फॉर्मेट वही होता है जनरली। You divide assets into non-current assets and current assets in the companies. You divide liabilities into like shareholders funds, मतलब capital. Then non-current liabilities and current liabilities, ऐसे liabilities को डिवाइड करते हैं। जो हमारा लास्ट चैप्टर है ना कंपनी अकाउंट, उसमें भी हमें ये करना है। बट बुरी बात है कि महाराष्ट्र बोर्ड में वो फॉर्मेट है ही नहीं, हम अभी भी टी फॉर्मेट ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो तुम्हारा नॉलेज हाफ नॉलेज है, ठीक है, इसलिए लोग बोलते हैं कि क्वालिटी नहीं है। एक्चुअल में ऐसे नहीं है, राइट? तुम्हें चीजें पता है बट कंप्लीट नहीं पता, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, सो ऑब्वियसली मैं जब सिखाऊंगा 12th में कंपनी अकाउंट्स, ऑब्वियसली वो हमारा सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इट विल टेक 1 month टू कंप्लीट द चैप्टर, बिकॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो तुम्हारे फाउंडेशन का भी बेस बनेगा। बिकॉज जब हम कंपनी अकाउंट्स फाउंडेशन में करेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च, तब तुम्हें सब आ रहा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। 12th में हम थोड़ा और डीप में करेंगे, सिंपल सिंपल चीजों से स्टार्ट करेंगे। तो राइट, उनके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट है, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। सो जहां पे फॉर्मेट नहीं होता वहां पे कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया जाता है? टी फॉर्मेट। डू यू रिमेंबर? ट्रेडिंग अकाउंट टी फॉर्मेट में, P&L अकाउंट टी फॉर्मेट में, बैलेंस शीट भी टी फॉर्मेट में होती थी। दैट फॉर्मेट इज यूनिवर्सल। इफ देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट गिवन बाय एनी एक्ट, देन यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट। ट्रस्ट, उनके लिए ट्रस्ट एक्ट का फॉर्मेट है। ट्रस्ट लाइक एग्जांपल नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए there is a specific format given by the trust act, उसी फॉर्मेट में हमें करना होता है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ, आई विल शो यू। यहां पे देख सकते हो आप, जो हमारा स्कूल है उसकी एल्यूमिनी फाउंडेशन है, जिसका ऑडिट और सब मैं देखता हूं, अकाउंटिंग वगैरह मेरे पास है, तो उसके लिए मैंने निकाल के रखा था। ठीक है, उनकी शेड्यूल से ट्रस्ट एक्ट के लिए शेड्यूल 8 बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा है, शेड्यूल 9 इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर रहा है। स्पेसिफिक शेड्यूल से स्पेसिफिक फॉर्मेट्स है, वी हैव टू फॉलो देम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं टी फॉर्मेट में करके नहीं चलेगा। अगर मुझे उस एल्यूमिनी का फाइनेंशियल बनाने, उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, जिसको वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, P&L की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम चेंज कर दिया, बैलेंस शीट करनी तो मैं टी फॉर्मेट में करके नहीं चलेगा। बॉडी जिसको मुझे सबमिट करना है, दे वोंट एक्सेप्ट इट। रजिस्टर ऑफ फॉर्म, राइट, जिस रजिस्टर है, ट्रस्ट का रजिस्टर है, उसको जाके सबमिट करने होती चीजें, ही वोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट।
मुझे इसी फॉर्मेट में उसके क्या करने होंगे, फाइनेंशियल्स करने होंगे। बट जब हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की, देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड देयरफॉर वी ऑलवेज फॉलो टी फॉर्मेट। समझ में आ रहा है? सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो लिख लेना फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं थोड़ा एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सबके लिए फायदा होगा, जिनको आता है उनके लिए तो बेस्ट ही है। ठीक है, एक सेकंड, कनेक्ट हो रहा है। ओके मैडम, व्हाट इज योर अकाउंटिंग प्रोसेस? व्हाट इज योर अकाउंटिंग प्रोसेस, टेल मी। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले क्या होते हैं? सबसे पहले होंगे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, बराबर? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ओके। उसके बाद बोलो मुझे। जर्नल। जर्नल, यू रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। जर्नल हम अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं, डू यू रिमेम्बर? उसको क्या बोलते थे? सब्सिडरी बुक। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन द कैश बुक। गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिट आर रिकॉर्ड इन द परचेज बुक। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। फिर अगर वहां पे परचेज बुक्स एंड सेल्स बुक्स में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए अगर वो रिटर्न्स होते हैं तो परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। एंड अगर इनमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है तो उसके लिए एक अलग बुक था, जर्नल प्रॉपर। देयर इज अ बिल्स रिसीवेबल बुक एज वेल एज बिल्स पेबल बुक, जो हम 12th में सीखेंगे, राइट? यहाँ पे हम वो सीखेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, ठीक है? सो दैट इज योर सब्सिडरी बुक्स। सो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स इज वन एंड द सेम। समझ में आ रहा है? जर्नल को हम सिस्टमैटिकली मेंटेन करेंगे तो सब्सिडरी बुक्स हो गए, दैट्स इट। सो ट्रांजैक्शंस, देन देयर कम जर्नल, एंड जर्नल में हम जर्नलाइज करते हैं, हम एंट्रीज जर्नलाइज करते हैं, बराबर? वहां से हम उसको कहा क्या करते हैं? वी पोस्ट देम इन लेजर्स। टी फॉर्मेट में लेजर्स होते हैं। लेजर इज ए बुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेजर इज ए बुक which has all ledger accounts। तुम्हारे सब लेजर अकाउंट्स रहेंगे, your all assets account, all liabilities account, all incomes account and all expense account, वो आएगा तुम्हारा क्या? लेजर, बराबर? सो वो जो तुम्हारा लेजर आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें तुम सब ट्रांजैक्शन जर्नल से क्या करोगे? पोस्ट करोगे। ये तुम्हारा डे टू डे बेसिस पे चलेगा, जर्नलाइजिंग पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग पोस्टिंग, जर्नलाइजिंग पोस्टिंग। जनरली मंथ के एंड में या ईयर के एंड में वी बैलेंस द लेजर्स। हम लेजर्स को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। इफ द डेबिट साइड इज मोर, we take the total of debit side, we put on credit side, and then we find the missing figure or balancing figure on credit side. That account is said to have which balance? Debit balance, because which side was more? Debit, because next time उसको debit पे लेके आएंगे, बराबर? Second क्या था? बोलो मुझे। Second was, right, अगर credit side is more, so we take the total of the credit right side, put it on debit side, and we find the balancing figure on डेबिट साइड, जिसको हम नेक्स्ट टाइम कहां पे लेके जाएंगे? क्रेडिट पे। द अकाउंट इज सेड टू हैव क्रेडिट बैलेंस। सो सम अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंसेस, सम अकाउंट्स हैव क्रेडिट बैलेंसेस, एंड देन वी प्रिपेयर ए समरी। एक स्टेटमेंट करते थे, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते थे? ट्रायल बैलेंस। द ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट बैलेंसेस। हम एक लिस्ट लिखते थे, नेम ऑफ द अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एंड वो ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो हम क्या करते थे? डू यू रिमेम्बर? अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो हम क्या करते थे? सस्पेंस अकाउंट करते थे, एंड हम उसको सॉल्व करते थे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। देखो हमारे 12th में एक भी सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन नहीं है,
मतलब जो भी क्वेश्चन दिया होगा ट्रायल बैलेंस क्या रहेगा, टैलीड रहेगा। फाउंडेशन में वैसे नहीं होगा, फाउंडेशन में मैक्सिमम ट्रायल बैलेंस आर नॉट टैलीड, तो तुम्हें उसको पहले टैली करना है और फिर सॉल्व करना है। मतलब क्वेश्चन देंगे जहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं, मतलब वहां पे सस्पेंस अकाउंट होगा, फिर तुम्हें रेक्टिफिकेशंस करने होंगे, रेक्टिफिकेशन इंक्रीज करोगे, सस्पेंस को 0 कर दोगे, again you will redraft the trial balance, and with that new trial balance and along with adjustment given in the question तुम्हें क्या करने, फाइनल अकाउंट। सच क्वेश्चंस कम्स फॉर 20 मार्क्स, जिसमें तुम्हारे 2-3 चैप्टर्स कंबाइन होते हैं। बीआरएस भी होता है, बीआरएस भी होता है, मैं वही बोल रहा हूं, मिक्स रहेगा। यहाँ पे हमें एक एक चीज अच्छे से समझनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमें खाली फाइनल अकाउंट देखना है। दे विल गिव यू ट्रायल बैलेंस, जो एग्रीड ट्रायल बैलेंस होगा, टैली ट्रायल बैलेंस होगा, अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट्स, and with that we have to prepare what, final accounts। ठीक है, yes, now ठीक है, give me 1 minute, मैं ये कनेक्ट कर रहा हूं नेट से, just 1 minute। या ठीक है, नाउ आई कैन शेयर द स्क्रीन। या हो गया, उधर चालू मत कर बस। यस, लेट्स स्टार्ट। लिखो यहाँ पे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आने वाले ऑलमोस्ट 1 वीक हम पूरे बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट्स वगैरह बहुत डिटेल में समझेंगे। देयर आर मोर एडजस्टमेंट देन द 12th देन द 11th, ज्यादा एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगे। एंड ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसके बाद जो हम करने वाले, वो करने वाले फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका कहाँ पे ये बेस है ऐसा बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। सो हर चैप्टर में एडजस्टमेंट्स आती है, और ये चैप्टर लाइफ लॉन्ग काम करेगा। जब भी तुम फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यही एडजस्टमेंट्स आएंगे, ठीक है। लिख लेना, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट, there are transactions and events, ठीक है, which we record in the journal, that is subsidiary books। Then from that we post them in the ledger। मैंने 11th में बोला था लेजर को भी हम डिवाइड करते हैं, एक होता था डेटर्स लेजर और सेल्स लेजर, जिसमें सब डेटर्स के लेजर्स आते थे।
दूसरा आता था क्रेडिटर्स लेजर और परचेसेस लेजर, जिसमें खाली क्रेडिटर्स के लेजर्स आते थे। डेटर्स के डेटर्स लेजर में गए, क्रेडिटर्स के क्रेडिटर्स लेजर में गए, उसके सिवा जो भी लेजर्स आएंगे, इनकम, एक्सपेंस, बाकी एसेट्स, बाकी लायबिलिटीज, सब जनरल लेजर में आता था। वो तुम इंटर में सीखोगे, सीए के इंटर में। उसको बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। मतलब एक्चुअली एक लेजर बुक होता था ना, तीन बन गए। एक लेजर बुक की जगह 3 बन गए, एक नोटबुक की जगह 3 नोटबुक बन गए। एक नोटबुक में सब डेटर्स के अकाउंट रहेंगे, एक नोटबुक में खाली क्रेडिटर्स के, और एक में बाकी सब। तो तुम्हारे एक्चुअली 3 ट्रायल बैलेंस बनते हैं। इन रियल लाइफ देयर आर 3 ट्रायल बैलेंस। एक डेटर्स के लिए ट्रायल बैलेंस बनेगा, खाली डेबिट 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 दिखेगा उसमें। एक बनेगा खाली क्रेडिटर्स का, जिसमें खाली क्रेडिट दिखेंगे, सब क्रेडिटर्स के नाम। इसलिए डेटर्स का जो ट्रायल बैलेंस आता है उसकी टोटल को बोलते हैं सन डेटर्स। तुम्हारे मेन ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? सन डेटर्स आता है ना। वो क्यों सन डेटर्स आता है, कभी सोचा क्या तुम लोगों ने? क्योंकि तुम्हारे पास 3 ट्रायल बैलेंस बनने वाले हैं। रियल लाइफ में देयर आर 3 ट्रायल बैलेंस, नॉट 1 ट्रायल बैलेंस। एक बुक रहेगा जिसमें खाली डेटर्स के अकाउंट रहेंगे, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी तुम्हारे डेटर्स है वो क्या दिखाएंगे? डेबिट बैलेंस है सब। तो एक ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसमें सब डेटर्स के नाम है। ऐसे 1000, 2000, 3000, तुम्हारे कितने डेटर्स तुम्हें ही पता ना, उतने डेटर्स रहेंगे। तो उस ट्रायल बैलेंस की टोटल को बोला जाएगा सन्ड्री डेटर्स। वैसे क्रेडिटर्स का ट्रायल बैलेंस बनेगा, कितने सारे क्रेडिटर्स रहेंगे। अब रिलायंस के क्रेडिटर्स सोचो कितने रहेंगे, यू कांट इमेजिन। यू क्या उतने बड़ा ट्रायल बैलेंस करते बैठेंगे क्या? तो फिर वहां पे रहेगा खाली राइट सन्ड्री क्रेडिटर, उस टोटल को सन्ड्री क्रेडिटर बोलेंगे। और एक ट्रायल बैलेंस रहेगा, तीसरा ट्रायल बैलेंस, जिसमें बाकी सब एसेट लाइक लैंड, कैश, बैंक, समझ में आ रहा है, व्हीकल, बिल्स रिसीवेबल वगैरह, या लायबिलिटीज, कैपिटल, बिल्स पेबल, लाइक क्रेडिटर्स तो नहीं रहेंगे राइट, सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी, फ्रेट वगैरह, परचेस, इनकम्स वगैरह, सब एक जगह पे रहेगा। फिर इन तीनों ट्रायल बैलेंस को मिक्स करके फाइनल ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो उसमें यू डोंट यूज ऑल द नेम्स ऑफ द डेटर्स, यू डोंट यूज ऑल द नेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स, आप उनके टोटल को बोलते हैं सन डेटर, सन क्रेडिटर्स। एक्चुअली अगर तुम्हें सन डेटर, सन क्रेडिटर चाहिए तो तुम अगर वो लिस्ट देखोगे तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये 10 लाख के जो डेटर्स दिख रहे हैं वो कौन कौन है, ये 12 लाख के क्रेडिटर्स दिख रहे हैं वो कौन कौन है, वो उस ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे। इमेजिन करके चलो सब कंप्यूटर पे हो रहा है, सन डेटर्स को क्लिक करोगे तो आप उस ट्रायल बैलेंस में जाओगे। लिंक है ना, समझा? तुम लोगों ने एक लिंक से दूसरे लिंक जाते हो ना, इंस्टाग्राम पे क्लिक हियर तो यू विल टेक, आपके फैन के पेज पे जाओगे आप, यू आर ए फैन, आपका हीरो के पेज पे जाओगे, वैसे ही है। सन्ड्री डेटर्स को क्लिक करोगे तो तुम्हें कहां पे लेके जाएगा? सन्ड्री डेटर्स के ट्रायल बैलेंस पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्लिक करोगे तो कहां पे लेके जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स के ट्रायल बैलेंस पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्चुअल में ऐसे होता है। तो देयर आर एक्चुअली 3 ट्रायल बैलेंस बिकॉज देयर आर 3 लेजर बुक्स। हमें उतना डीप में नहीं जाना है, बट एक मैं ओवरव्यू दे रहा था, तुम्हें समझेगा कि अकाउंटिंग जितना बुक में सीख रहे हो ना उससे बहुत अलग है। क्यों इतना डिफरेंट है? बिकॉज तुम्हें अकाउंटिंग के टाइम पास के लिए नहीं, तुम्हें डिसीजन मेकिंग का टूल है अकाउंटिंग। तुम्हें डिसीजन लेनी है, इसलिए जितने डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा ना उतनी बेटर डिसीजन निकाल ले सकते हो। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? खाली गवर्नमेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे कि हमें टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट बोलते हैं अकाउंट्स रखो। तुम्हारे खुद के लिए भी करनी है ना अकाउंटिंग। अब मैं मेरी पर्सनल अकाउंटिंग करता हूँ, आई डू माई ओन अकाउंटिंग। अभी मेरे जो एंगेजमेंट है, मैरिज का जो मेरा चल रहा है, वेडिंग का, उसके मैंने एक्सपेंसेस वगैरह सब रिकॉर्ड करके रखे। मुझे पता होना चाहिए मैंने कितना खर्चा किया। समझ में आ रहा है? मुझे किसी से रिकवर नहीं करना है वो, बट मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि आई मस्ट नो कि मैंने कितना खर्चा किया। इवन आई नो कि अभी तक मैंने इतना कभी एक साल में नहीं किया होगा जितना मुझे इस बार करना पड़ेगा। तो मेरा भी खुद पे कंट्रोल होना चाहिए ना, कितना एक्सपेंस करो या ना करो। समझ में आ रहा है? तो ये समझना है। सपोज आई परचेज ज्वेलरी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर मैं बाकी चीजें लेता हूँ, ड्रेस वगैरह, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट, इट्स एन एक्सपेंस। मैं मेरे पॉइंट ऑफ से देख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो मेरा भी कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए अकाउंटिंग उतनी इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये सब चीजें मैटर करती है। अकाउंटिंग खाली गवर्नमेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हो, अरे खुद पे कंट्रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एस्पेक्ट होता है। अकाउंटिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसे जा रहा है। तो अकाउंटिंग इसलिए करनी होती है। तो इतने डीप में अकाउंटिंग की होती, इतने ग्रास रूट लेवल पे अकाउंटिंग की होती, बिकॉज हमें डिसीजंस लेने।
एक हिडन रूल है, कहां पे भी नहीं लिखा, मैंने 11th में बोला था, जितने नंबर ऑफ अकाउंट्स रहेंगे ना उतने बेटर अकाउंटिंग होती है। जितने ज्यादा अकाउंट्स ओपन करोगे ना उतने डिटेल लेवल पे अकाउंटिंग हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेजर्स, लेजर्स हम बैलेंस करके हमें मिल जाएगा क्या? ट्रायल बैलेंस। And along with there are adjustments, we have to prepare what? Final account. Trial balance along with adjustment, we will prepare final accounts. ठीक है? Now what is all included in the final account? This is my first point. Not अब डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या होता है। सेकंड, जनरली लोग उसको फाइनेंशियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अगर मुझे ओवरऑल बेसिस बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस बोलूंगा, या अगर चलो एक एक लेते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। Who prepares manufacturing account? The manufacturing entities prepares manufacturing account. Who prepares? Manufacturing entities prepare manufacturing account. Second, ये देता क्या है तुम्हें? This gives you cost of manufacturing, cost of production. Manufacturing account gives you cost of production, right? और cost of finished goods produced लिखो, cost of finished goods produced. तुमने जो प्रोडक्शन किया है ना साल भर में फिनिश गुड्स का, उसकी कॉस्ट बोलता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। सेकंड, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडर्स, क्या मैन्युफैक्चरर भी ट्रेडर्स होते हैं? क्या लगता है तुम्हें? क्या मैन्युफैक्चरर्स भी ट्रेडर्स होंगे? अरे वो क्या प्रोड्यूस करके घर में थोड़ी रखेंगे, they will sell it now, means they are also traders, so they will also prepare this. Traders prepares what? Trading account. उसमें मैन्युफैक्चरर्स भी आ गए। क्या सर्विस प्रोवाइडर ये करेगा? सीए क्या ट्रेडिंग अकाउंट करेगा? मैन्युफैक्चर अकाउंट करेगा? लॉयर क्या ये दो अकाउंट्स करेगा? आर दे मैन्युफैक्चरिंग समथिंग? आर दे ट्रेडिंग समथिंग? परचेस सेल कर रहे क्या? वो नहीं। बोलोगे नहीं सर वो स्टेशनरी परचेस करते हैं, बट क्या स्टेशनरी गुड्स है उनके लिए? गुड्स परचेस क्या होता है? यू हैव परचेस समथिंग फॉर सेल, वो गुड्स होते हैं। वो उनके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया ना, समझ में आ रहा है? वो स्टेशनरी है, वो परचेस अकाउंट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स यू व्हाट ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है? व्हाट यू गेट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस लिख लेना। Trading account is prepared to find out gross profit or gross loss. Third, then we prepare which account? Profit and loss account. It gives you which profit? Net profit. Fourth, we prepare profit and loss appropriation account. मैंने कल बात की थी, याद है? मतलब पहले ट्रेडिंग, फिर पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग, फिर P&L, एंड देन जो प्रॉफिट आएगा ना उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। This gives distribution of profits.
एप्रोप्रिएट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स, बराबर। बेसिकली इन सब को तुम एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, इनकम स्टेटमेंट। तुम अगर तुम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ोगे ना, द वर्ड यूज इज इनकम स्टेटमेंट। अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ोगे, दे डोंट यूज P&L, दे डोंट यूज ट्रेडिंग अकाउंट, वो क्या वर्ड यूज करते हैं, इनकम स्टेटमेंट। कंबाइन यू कॉल देम एज ए इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। एंड इट इज, ये जो इनकम स्टेटमेंट है ना, दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। व्हाट इज एक्रूअल बेसिस, थोड़ा फर्क पता है तुम लोगों को? एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक होती है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू रिकॉर्ड इवन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। कैश सिस्टम में खाली कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? कैश। एग्जांपल, यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, विल यू रिकॉर्ड इट? यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या हम 11th में रिकॉर्ड करते थे? करते थे या नहीं करते थे? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट राशि एंट्री आती थी नहीं आती थी? यस और नो? सो इट्स ए, यू आर नॉट पेड, स्टिल यू आर रिकॉर्डेड इट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री आती थी क्या? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना, इसमें कैश नहीं है फिर भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। अगर वही कैश सिस्टम फॉलो करते ना, यू वोंट रिकॉर्ड इट। जब पेमेंट करेंगे तब परचेस की एंट्री डालेंगे, जब पैसे मिलेंगे तब सेल की एंट्री डालेंगे। एक्रूअल में जब हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करें तब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड जब पैसे मिलते तभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हम गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते तब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, एंड जब हम पेमेंट करते तभी भी रिकॉर्ड करते हैं। कैश सिस्टम में you record the transactions only when you receive the cash or you pay the cash, but that system is not correct system of accounting. Correct system of accounting is an accrual system जिसमें outstanding expenses, outstanding income, prepaid expenses, income received advance, ये सब transactions हम record करते हैं। हम accrue देखते हैं ना कि receipt, हम accrue देखते हैं ना कि payment। अगर एक किसी ने हमारे ऑफिस में, हमारे फर्म में 12 मंथ्स काम किया है, तो उसका सैलरी, हमारा एक्सपेंस है 12 मंथ का, चाहे आप पे करो या ना करो, एक्सपेंस है। अगर आप पे करते हो तो कैश विल रिड्यूस, इफ यू डोंट पे तो लायबिलिटी विल इंक्रीज। किसी ने हमारे फर्म में 12 मंथ्स काम किया है, उसमें से 10 मंथ की सैलरी हमने पेड की है। 10 मंथ की सैलरी पेड की है मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, उतने से कैश भी डिक्रीज हुई है। आपने पेमेंट किया ना, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है और आपने वो पेड किया है। 2 मंथ की सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, बट यू आर नॉट पेड, तो आपको क्या दिखानी होगी? लायबिलिटी। यू शो इट इज अ पेएबल। पेड नहीं की तो आप क्या दिखाते हो उसको? पेएबल। आपने इन्वेस्ट किया पैसे, इन्वेस्टमेंट है आपके बॉन्ड्स में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यू शो इट इज इनकम एंड यू ऑल्सो एड इन कैश। इंक्रीज हो जाती है ना, पैसे रिसीव होने के, इनकम रिसीव होने से कैश इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर रिसीव नहीं तो यू शो इट इज ए रिसीवेबल। सो पेबल्स, रिसीवेबल्स ये क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। इनकम लिख लेना कहां पे, तो टॉप ऑफ द पेज कहां पे, तो लिख लेना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकम इज, रिसीट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इनकम। रिसीट is not always equal to income. Receipt is not always equal to income. Receipt and income is India Pakistan. ये मत लिखना इंडिया पाकिस्तान, ठीक है? समझ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिसीट एंड इनकम अलग अलग होते हैं मैडम। मान के चलो कमीशन रिसीव्ड 10,000 है एंड कमीशन रिसीवेबल 5,000 है। रिसीव्ड 10,000, रिसीवेबल 5,000 है, तो एक्चुअली तुम्हारी इनकम कितनी है? 15,000। सो रिसीट इज 10,000 बट इनकम कितनी है? 15,000। तो रिसीट अलग है, इनकम अलग है। सिमिलरली लिखना,
payments and expenditure are not always same. Payment and expenditure are not always same. Payment and expenditure not always same. मान के चलो एग्जांपल, तुमने 12,000 की सैलरी पेड की है मैडम, कितने की पेड की है? 12,000, तो पेमेंट कितना है? 12,000, और मैं बोला 3,000 की सैलरी अभी भी पेएबल है, तो तुम्हारा सैलरी एक्सपेंस एक्चुअली कितना है? 15,000, उसमें से 12,000 पेड है, 3,000 पेएबल है। एक्सपेंस 12,000 या 15,000 है? 15,000, तो पेमेंट 12,000 है, एक्सपेंस कितना है? 15,000। क्या दोनों इक्वल है? हाँ, 15,000 की सैलरी आपने पूरी की पूरी पेड कर दी, तो पेमेंट एंड एक्सपेंस सेम है। मैंने बोला नॉट ऑलवेज, अगर आउटस्टैंडिंग वगैरह रहेगा तो दोनों सेम नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं, लोगों को लगता है पेमेंट हुआ मतलब वो एक्सपेंडिचर ही है। अरे भाई, पेएबल भी हो सकता है। लोगों को लगता है इनकम आ गई मतलब पूरी की पूरी इनकम है, हाँ, बट रिसेल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये जनरली ज्यादा एनटीओ में लगेगा। देन एंड इट इज ए टाइम, इट्स ए पीरियड स्टेटमेंट। इट्स ए पीरियड स्टेटमेंट, मतलब पीरियड हमेशा एक साल का होता है ना। हम क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इट इज फॉर द ईयर, और नॉट नेसेसरी ईयर, 6 मंथ्स का भी हो सकता है। अब एग्जांपल क्वार्टरली आ गया, क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, देखो लिस्टेड कंपनी से क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं। कल रिलायंस का रिजल्ट आया था, कल रिलायंस का क्वार्टर का रिजल्ट था। कौन से क्वार्टर का था? अभी हम मई में, तो कौन से क्वार्टर का रहेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, Q4 of financial year 21-22, quarter 4 of financial year 21-22, उसका उन्होंने रिजल्ट दिया। लिस्टेड कंपनीज को सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पता है ना सेबी? तुमने वो 92 स्कैम देखी होगी ना, राइट? जिन्होंने देखी होगी उनको समझेगा, सेबी बॉडी थी, राइट? तो सेबी रिक्वायर्स देम टू, राइट, पब्लिश देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स। समझ में आ रहा है? तो वो 3 मंथ्स के P&L बनाते हैं। कितने मंथ्स के बनाते हैं? 3 मंथ्स के बनाते हैं। सो इट इज फॉर द पीरियड, डिपेंड्स आप कितने मंथ्स के करो, तुम्हारी चॉइस है। या कभी कभी जब तुम लोन लेने जाओगे तो बैंकर बोलेगा मुझे अभी, सपोज तुम लोन लेने गए अभी, सपोज मई में गए, बोलेगा मुझे अप्रैल मई का बैलेंस शीट और P&L करवा के दे। लास्ट ईयर तक का है, इस पीरियड का भी दे। लोन लेना तो हम वो करके भी देंगे ना उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे नहीं कि 12 मंथ्स का होगा, बट एक पीरियड का होगा। इट डिपेंड्स कि आप कितने मंथ्स के लिए कर रहे हो। हमारे सिलेबस में ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर अकाउंटिंग है, हमारे सिलेबस में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं है, हमारे सिलेबस में ये दोनों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये भी होते हैं इफ द पार्टनरशिप फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग वन। हमारे इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारे इसमें ट्रेडर्स है सब कुछ। सेकंड, ठीक है। फिफ्थ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या दिखाती है? व्हाट यू ओन एंड व्हाट यू ओज। आप क्या ओन करते हो, आपके असेट्स एंड आपके लायबिलिटीज। व्हाट यू ओन एंड व्हाट यू ओज, इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। एंड ये क्या दिखा रहे थे? इनकम स्टेटमेंट्स क्या दिखा रहे थे? फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। सो दे बैलेंस शीट गिव्स फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज असेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट? इसलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम एंड एक्सपेंस, सॉरी, P&L को क्या बोलते हैं आप लोग? इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर या P&L account prepared on accrual basis. Balance sheet is also prepared on accrual basis. But balance sheet क्या एक पीरियड की होती है या ऑन ए गिवन टाइम होती है?
It's a point statement. बैलेंस शीट इज ऑलवेज एज ऑन 31st मार्च, बराबर ना? 31st मार्च के बैलेंसेस दिखाते हो ना आप लोग, सो पॉइंट स्टेटमेंट। क्लियर है? ये ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा, राइट? 6, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स आर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स। तुम क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हो? तुम डेप्रिसिएशन के लिए डब्ल्यूडी फॉलो कर रहे हो, एसएलएम फॉलो कर रहे हो, तो क्या क्या रेट्स तुमने यूज किए, समझ में आ रहा है? इन्वेंट्री को तुम कैसे वैल्यू कर रहे हो, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, समझ में आ रहा है? ये सब चीजें इसमें ऐसे एक एक नोट्स रहेगी, ठीक है, हर इसकी एक नोट रहेगी, देन बट हमें नोट्स नहीं करने होते, राइट? देन दिस इज ऑल इंक्लूडिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म के इसमें हो सकता है, ऑफ फर्म, ठीक है। थर्ड, ठीक है, जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस होता है, राइट, उसमें देयर आर अकाउंट्स, राइट? व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस मैडम? ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस, बराबर? ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस। Trial balance is summary of ledger account balances. So which are those ledger accounts? कौन कौन से लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं? बेसिकली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग we divide ledger accounts into 4 types. Some ledger accounts are asset accounts. Some ledger accounts are liability accounts. Some ledger accounts are income accounts. And some ledger accounts are expenses accounts. देखो तुम्हारे एज पर योर गोल्डन रूल्स या जो ट्रेडिशनल अप्रोच है अकाउंटिंग का, वी डिवाइड अकाउंट्स इनटू 3 कैटेगरीज, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, बट दे आर यूजलेस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। दे आर यूजलेस, उसका यूज होता ही नहीं। जो मॉडर्न अकाउंटिंग है ना, इट डिवाइड्स अकाउंट्स इनटू 4 और मैक्सिमम 5 टाइप्स। 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? असेट रहेगा, लायबिलिटी को 2 में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल को अलग बोलते हैं, लायबिलिटीज को अलग बोलते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। बट मैं कैपिटल एंड लायबिलिटी को मैं एक में डाल रहा हूं। सो बेसिकली जब कभी भी मैं डिस्कस करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मेरा पूरा अकाउंटिंग इन चारों के आजू बाजू में मिलेगा आपको। सो हम हमारे जो ट्रायल बैलेंस में उसमें 4 टाइप्स के अकाउंट्स रहेंगे, असेट अकाउंट्स रहेंगे, लायबिलिटी अकाउंट्स रहेंगे, इनकम अकाउंट रहेंगे एंड एक्सपेंस। असेट्स मतलब व्हाट यू ओन, तुम्हारा क्या है। लायबिलिटीज मतलब व्हाट यू हैव टू पे, तुम्हें किसी को देना होगा, वो लायबिलिटी है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आर लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस आर व्हाट, राइट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जिसका मिला है, जो खत्म हो चुका है बेनिफिट्स, वो एक्सपेंसेस है। एंड इनकम्स क्या है? जो तुम्हारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो इनकम है। सो बेसिकली हमारे ट्रायल बैलेंस में 4 टाइप्स के अकाउंट्स रहेंगे, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। असेट्स अकाउंट, राइट, उनके रूल भी लिख लेना यहाँ पे, अभी लिख ही रहे तो ठीक है, क्योंकि हमें पूरे साल लगेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी असेट अकाउंट, डाल देना। सपोज दिस इज asset account,
टी फॉर्मेट में एसेट अकाउंट है। आई नो कोई लोगों के लिए रिपीटेड चीजें हैं, बट दिस इज बेसिक थिंग दैट आई नीड टू कवर। यस, ध्यान देना। Any asset account, ध्यान देना, any asset account, it can be cash account, it can be machinery account, vehicle account, bank is also asset. Any asset account, if there is an increase in that asset, किसी transaction के बाद, उस transaction होने के बाद उस asset में increase हो रहा है. You received cash increases. You received check, bank balance increases. You purchase vehicle increases. समझ, you received bills receivable increases. समझ में आ रहा है? You purchase land increases. Any transaction which will increase the asset, तो उस transaction की जब हम journal entry करते हैं ना, तो we debit that asset. Increase in asset is called as what? Debit. तो हम उस asset को क्या करते हैं? Debit. So what is a debit in the asset? Increase in the asset. Whenever an asset will increase, we will debit that asset. Debit करेंगे मतलब क्या? हम उसको increase करेंगे. हमारे accounting में उसको क्या करेंगे? Increase. जब भी asset increase होगी तो उसको क्या किया जाएगा? Debit. मतलब उस account के, उस asset account के debit side पे जाके लिखना. Debit करना मतलब क्या? उस account के debit पे जाके लिखना. तुमने cash account को debit किया मतलब क्या? Cash account के debit पे जाके तुमने post कर दिया. तुमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया मतलब क्या? टी फॉर्मेट में बैंक अकाउंट रहेगा, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड, उसके डेबिट में जाके लिख दिया. डेबिट करना मतलब क्या? पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड. क्रेडिट करना मतलब क्या? पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड. सो जब हम असेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं मतलब क्या करते हैं? उनको हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज इन असेट इज अ डेबिट. सो असेट्स अकाउंट की डेबिट साइड क्या होती है? इंक्रीज. So whenever you have to increase any asset, हम उसके कौन से साइड पे पोस्ट करेंगे? उस असेट के कौन से साइड पे पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड पे. सो कैश इंक्रीज करनी है, कैश को डेबिट. बैंक बैलेंस को इंक्रीज करना है, बैंक को डेबिट. फिक्स असेट्स को इंक्रीज करना है, फिक्स असेट्स को डेबिट. बिल्स रिसीवेबल को इंक्रीज करना है, उन बिल्स रिसीवेबल को डेबिट. प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, इंक्रीज करना है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट. एनी असेट टू बी इंक्रीज, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. डेबिट करेंगे मतलब उसके कहां पे जाके लिखेंगे? डेबिट साइड पर. अरे अपोजिट होता है डिक्रीज. व्हेनेवर यू हैव टू डिक्रीज द असेट, आपको किसी भी असेट को डिक्रीज करना है तो अकाउंटिंग में उस असेट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट. तुमने कैश पेमेंट कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, कैश डिक्रीज हो गई तो कैश को क्रेडिट कर दो. तुमने चेक इशू किया, बैंक के थ्रू पेमेंट होने वाला है, बैंक बैलेंस रिड्यूस होने वाला है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो. तुमने मशीनरी सेल कर दी, मशीनरी रिड्यूस हो गई, गोज आउट, मशीनरी को क्रेडिट कर दो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेनेवर बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन योर असेट्स आर गोना डिक्रीज, तो हम उन असेट्स को क्या करते हैं? हमारे इधर क्रेडिट करते हैं. तो सिंपल वर्ड्स में असेट अकाउंट डेबिट साइड मतलब क्या? इंक्रीज इन देम. असेट अकाउंट क्रेडिट साइड मतलब क्या? डिक्रीज इन देम. बराबर. देन अब मुझे बोलो, जब भी हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस क्या होता है? नेट इंक्रीज. किसी भी अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो क्या होता है? अगर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो बैलेंस कौन सा रहेगा? डेबिट. इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो बैलेंस कौन सा रहेगा? क्रेडिट. नेट इंक्रीज इज अ बैलेंस. तो असेट अकाउंट में इंक्रीज क्या है? डेबिट. डिक्रीज क्या है? क्रेडिट. एक यूनिवर्सल रूल है, डिक्रीज कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज. तुम्हारे पास 10 लाख कैश है, कैश इंक्रीज 10 लाख से, डिक्रीज कितने से हो सकते हैं मैडम? 10 लाख से, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना. सो वही बोल रहा हूं. तो नेट क्या बचेगा मैडम? नेट बचेगा इंक्रीज. ध्यान देना. राइट. देयरफॉर यहां पे इंक्रीज, किसी भी अकाउंट में इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज. कोई भी टाइप का अकाउंट रहने दो, कोई भी. जब भी आप बैलेंस करते हो मतलब क्या करते हो?
यू फाइंड आउट नेट इंक्रीज, बैलेंस कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, नेट इंक्रीज ढूंढ रहे हो। तो मुझे बोलो असेट में डेबिट्स आर मोर देन क्रेडिट, द इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज मतलब डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, तो असेट में कौन सा बैलेंस होगा बोलो मुझे, डेबिट बैलेंस। असेट्स अकाउंट ऑलवेज शोज व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। यहां तक क्लियर है क्या मुझे बोलो, राइट। सो इसलिए असेट्स अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, असेट्स आर डेबिटेड। जब जब असेट को इंक्रीज करना है किसी ट्रांजैक्शन में, उस असेट को हम क्या करेंगे, डेबिट, एंड जब जब हमें उसको डिक्रीज करना है हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एग्जैक्टली उल्टा होता है लायबिलिटी अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है। बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं, मींस क्रेडिट साइड ऑफ लायबिलिटी इज इंक्रीज इन दैट लायबिलिटी। कैपिटल इंक्रीज हो गया, हमारे एंट्री में हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। कैपिटल को क्रेडिट करते हैं मतलब कैपिटल अकाउंट में जाके उसके क्रेडिट पे लिखते हैं। लायबिलिटी अकाउंट में क्रेडिट पे लिख रहे हैं मतलब उस लायबिलिटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज। तुमने लोन लिया, सो लोन इंक्रीजेस, लायबिलिटी इंक्रीजेस, तो यहाँ पे लोन लायबिलिटी इंक्रीज है तो उसको इंक्रीज करने के लिए लोन अकाउंट के कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट पे। इसलिए हम बोलते हैं लोन को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी अकाउंट, उसकी इंक्रीज साइड कौन सी रहेगी, क्रेडिट। तो हम क्रेडिटर्स के क्रेडिट पे लिखेंगे, इसलिए बोलते हैं क्रेडिटर्स को क्रेडिट करो जर्नल एंट्री में। सो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट, एग्जैक्टली अपोजिट। इफ लायबिलिटी डिक्रीजेस हम क्या करते हैं, डेबिट। एग्जांपल, आपने लोन रिपे किया, लोन रिपे किया, लायबिलिटी कम हो गई, तो लोन अकाउंट में जाओ, उसकी डिक्रीज साइड कौन सी है, लोन डिक्रीज हुआ ना, तो उसकी डिक्रीज साइड कौन सी है, डेबिट। इसलिए हम लोन के डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं लोन को डेबिट करना है। तुमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, कैश दिया, चेक दिया, पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को, क्या तुम्हारी लायबिलिटी वाज क्रेडिटर डिक्रीज हो गई, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाओ, उसकी डिक्रीज साइड पे पोस्ट करो, वो उसकी डिक्रीज साइड कौन सी है, डेबिट। इसलिए हम बोलते हैं कि क्रेडिटर्स को डेबिट करो। तो जब जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी उसके इंक्रीज साइड पे लिखो, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखो, मतलब लायबिलिटी को क्रेडिट करो। जब जब कोई लायबिलिटी डिक्रीज होगी तब उसके डिक्रीज साइड पे लिखो, मतलब उसके कौन से साइड पे लिखो, डेबिट साइड पे लिखो, मतलब उस लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, डेबिट। सो रूल तो ये हमेशा रहेगा, ये रूल तो यहाँ पे भी रहेगा ना, हर जगह पे रहेगा बराबर। तो मुझे बोलो इसमें बैलेंस कौन सा आएगा, इंक्रीज क्या है, लायबिलिटी में इंक्रीज क्या है मैडम, क्रेडिट आर मोर देन डेबिट्स, तो इसमें नेट क्या बचेगा मैडम, क्रेडिट बैलेंस। अरे लास्ट मैडम समझ में आ रहा है क्या, उसका नाम क्या है मैडम, लास्ट वाली मैडम समझ में आ रहा है क्या, राइट। नेक्स्ट आगे, इनकम्स, इनकम्स एंड लायबिलिटी सेम रूल है। व्हेनेवर डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, ट्रांजैक्शन की वजह से इनकम या तो इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं, दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई भी अकाउंट या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज, असेट्स या तो इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज, लायबिलिटीज या तो इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज, सिमिलरली इनकम एक्सपेंस या तो इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज। किसी ट्रांजैक्शन होने के बाद इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमें इनकम के इंक्रीज साइड पे जाके लिखना होगा। ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुई ना, तो इनकम अकाउंट ढूंढो लेजर में, उस इनकम अकाउंट के इंक्रीज साइड पे लिखो विच इज क्रेडिट साइड। इसलिए हम बोलते हैं इनकम इंक्रीज होने पे हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। एग्जांपल, आपने गुड्स सेल किए, सेल्स क्या तुम्हारी इनकम है, तो सेल्स अकाउंट ढूंढो, उसके इंक्रीज साइड पे लिखो, मतलब कौन से साइड पे लिखो, क्रेडिट। इसलिए बोलते हैं इनकम को, सेल्स को क्रेडिट करो। तुम्हें कमीशन रिसीव्ड हो गई, क्या कमीशन रिसीव्ड तुम्हारी इनकम है, यस, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ढूंढो, उसके इंक्रीज साइड पे लिखो, क्योंकि इनकम बनी है, इंक्रीज हुए है, उसकी इंक्रीज साइड कौन सी है, क्रेडिट। इसलिए जर्नल एंट्री में हम कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट करते हैं। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑल दीज आर इनकम्स, और उनके इंक्रीज साइड कौन सी होगी, क्रेडिट। एंड इफ बाय चांस इनकम डिक्रीजेस, इफ बाय चांस इनकम डिक्रीजेस, एग्जांपल रेक्टिफिकेशन में इनकम को रिड्यूस कर दिया वगैरह, ठीक है, हार्डली होगा ऐसे, इनकम डिक्रीज नहीं होगी, बट हमने रिवर्स कर दिया एग्जांपल इनकम, समझ में आ रहा है, सेल्स रिटर्न, लाइक सेल्स कम होते हैं, समझ में आ रहा है, वैसे
तो उस केस में डिक्रीज इन इनकम इज डेबिटेड, तो हम इनकम अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। रूल यहां पे भी अप्लाइड है, इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज। किसी भी लेजर अकाउंट में एंड में क्या रहेगा, इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज। तो इनकम्स में इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट्स, डिक्रीज क्या होता है, डेबिट। देयरफॉर इनकम अकाउंट्स में हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा है? एंड द लास्ट इज एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट वन इज विच अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। ध्यान देना, एक्सपेंस अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस उठाओ, कोई भी एक्सपेंस उठाओ, लाइक राइट, रेंट अकाउंट, परचेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट। आपने गुड्स परचेस किए, क्या मैडम एक्सपेंस हुए? गुड्स परचेस करने पे परचेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, मतलब बढ़ रहे। पहले 1 लाख का परचेस किया, अब 2 लाख का और परचेस किया, तो टोटल परचेस कितने हो गए, 3 लाख। और 5 लाख के परचेस किए, टोटल परचेस कितने हो गए, 8 लाख। सो जितना परचेस करोगे उतने परचेस एक्सपेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सो हमें क्या करना होगा, परचेस अकाउंट में जाके उसके इंक्रीज साइड पे लिखना होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इट्स इंक्रीज साइड इज डेबिट। सो एक्सपेंसेस की इंक्रीज साइड कौन सी होती है, डेबिट। एक्सपेंसेस की इंक्रीज साइड कौन सी होती है, डेबिट। सैलरी पेड की, एक्सपेंस बन गया, तो सैलरी अकाउंट के इंक्रीज साइड पे जाके लिखो कौन सी साइड इंक्रीज है, डेबिट, तो सैलरी को डेबिट करो। रेंट पेड किया, रेंट अकाउंट में जाओ, उसके इंक्रीज साइड पे लिख दो कौन सा है, डेबिट। समझ में आ रहा है? एंड सिमिलरली जब भी कोई एक्सपेंस डिक्रीज होगा, रिवर्सल होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये रूल यहां पे भी काम करेगा, इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज, एंड देयरफॉर इन केस ऑफ एक्सपेंसेस इंक्रीज क्या होता है, डेबिट्स, डिक्रीज क्या होता है, क्रेडिट, एंड देयरफॉर तुम्हें बैलेंस क्या मिलेगा, डेबिट बैलेंस मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा, डेबिट बैलेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो ऑलवेज रिमेंबर, एनी असेट अकाउंट which shows which balance, debit. Any liability account shows which balance, credit balance. Liabilities account shows which balance, credit. ठीक है? Assets incomes account shows which balance, income account shows credit balance. Income account shows credit balance, and expenses account shows which balance, debit balance. इसलिए मैं 11th में बोलता था असेट्स एंड एक्सपेंसेस का रूल सेम होता है, असेट्स एंड एक्सपेंस का रूल सेम होता है, इनकम्स एंड इनकम्स एंड लायबिलिटीज का रूल सेम होता है। लिख लेना एक सिंपल वर्ड में, जिनको बहुत ज्यादा टेंशन लेना है, लिख लेना असेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। हम असेट्स को एंड एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। एंड दूसरा रूल है liabilities and incomes, liabilities and incomes are credited, liabilities and incomes are credited. This rule is applicable for increase in them. This is applicable for what, increase in them. So ये rule, debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit the expense, credit the expense, वो वाहियात रूल से, to be very frank. As a professional you never use them. एकदम सिंपल रूल है, असेट्स को हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस को भी डेबिट करते हैं व्हेन दे इंक्रीज। मतलब अगर डिक्रीज होगा तो रिवर्स करना होगा, असेट्स डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं एंड इनकम को भी क्रेडिट करते हैं, फॉर व्हाट, इंक्रीज। अगर उनमें डिक्रीज होगा तो हम उनको रिवर्स करेंगे, मतलब क्या करेंगे, डेबिट। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर तुम्हें एज ए कॉमर्स तुम्हारे रिलेटिव्स वगैरह तुम्हें ना टीज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, वी डोंट हैव आंसर। हम उनको अकाउंट एंट्री बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली डेबिट मतलब क्या, क्रेडिट मतलब कहीं नहीं पता। एक्चुअली डेबिट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट इज राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। लिख लेना, डेबिट मीन्स
Debit means what? Left hand side of the account. Left hand side of the account. बराबर? डेबिट मतलब क्या होता है यार? क्या बोल सकते हो? इंक्रीज डिक्रीज से डेबिट मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट फॉर असेट्स इट्स इंक्रीज इन देम, बराबर ना? फॉर असेट्स एंड एक्सपेंस लिखना, फॉर असेट्स एंड एक्सपेंस डेबिट मतलब क्या होता है? बोलो मुझे। असेट्स एंड एक्सपेंस के लिए डेबिट मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन देम। असेट्स अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मतलब क्या? इंक्रीज इन देम। एंड फॉर लायबिलिटीज एंड इनकम्स डेबिट क्या होता है? डिक्रीज इन देम। अगर कोई तुम्हें पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट, तो आप उनको बोलना, अगर आप मुझे असेट्स के बारे में पूछते हो मतलब इंक्रीज, अगर आप एक्सपेंस के बारे में पूछते हो तो इंक्रीज, बट वही इनकम एंड लायबिलिटी के बारे में पूछोगे तो डेबिट मतलब डिक्रीज, डिक्रीज इन देम। समझा? सो व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट? डेबिट मींस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, असेट्स एंड एक्सपेंस के लिए इंक्रीज, इनकम्स एंड लायबिलिटीज के लिए डिक्रीज। देन व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? क्रेडिट मींस right hand side of account. It's a right hand side of the account. ठीक है? For assets and expenses and for incomes and liabilities. मुझे बोलो assets and expense के लिए क्रेडिट का मतलब क्या होता है? Decrease in them. Assets and expense के लिए क्रेडिट मतलब डिक्रीज। समझ में आ रहा है? Assets and expense के लिए क्रेडिट मतलब डिक्रीज, एंड फॉर लायबिलिटीज एंड इनकम के लिए क्या रहेगा? इंक्रीज इन देम। ये जो मैंने डिस्कस किया ना, बेसिक चीजें डिस्कस किया, बिकॉज हमें पूरे साल लगने वाली है। ठीक है? बिकॉज यही तो हमारी लाइफ है, यही तो डेबिट एंड क्रेडिट तो हमारी लाइफ है। एंड इफ डेबिट्स आर मोर देन क्रेडिट, डेबिट बैलेंस रहता है। इफ क्रेडिट्स आर मोर देन डेबिट इन एनी लेजर, क्रेडिट बैलेंस रहता है। समझ में आ रहा है? तो ट्रायल बैलेंस में कौन से 4 अकाउंट रहेंगे मैडम? ट्रायल बैलेंस में कौन से 4 अकाउंट रहेंगे? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। हमने उसके रूल समझ लिए। व्हाई असेट्स अकाउंट डेबिट बैलेंसेस? बिकॉज increase is debit in them. Why expense account has a debit balance? Because increase in them is a debit. Why income से liability is credit balance? Because वो increase है, net increase होता है। बैलेंस मतलब क्या? नेट क्या बचा है? बैलेंस मतलब क्या? सब ट्रांजैक्शन के बाद उसमें कितना बचा है? Are you getting my point? Now try to understand. जब मैंने बात की अकाउंट्स, राइट, जब मैंने बात की इन 4 अकाउंट्स के बारे में, अब हम इनको फाइनल अकाउंट में इनके साथ क्या करना है ये हमें समझना है। अकाउंट्स, ठीक है, ध्यान देना। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस। ध्यान देना, सिंपल एकदम। इसमें से द 2 अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट दैट इज इनकम एक्सपेंस को आप नॉमिनल बोलते थे, बराबर? These accounts are transferred at the end of the year. Income account and expense account are balanced and they are closed by transferring their balance to trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account. जो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में 4 टाइप्स के अकाउंट्स रहेंगे। डेबिट पे कौन से अकाउंट्स रहेंगे? डेबिट साइड पे असेट्स एंड एक्सपेंस। क्रेडिट साइड पे कौन से अकाउंट्स रहेंगे? इनकम्स एंड लायबिलिटीज। उसमें से जो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है, उन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? बिकॉज व्हाट इज योर प्रॉफिट? कॉमन सेंस प्रॉफिट क्या होता है मैडम? इनकम माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट। अगर तुम्हें प्रॉफिट ढूंढना है तो तुम्हें कौन से 2 अकाउंट चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंस। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट, जितने सारे इनकम्स अकाउंट है हम उनको ट्रांसफर करेंगे, एंड जितने सारे एक्सपेंस अकाउंट है उनको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसलिए एवरी ईयर
we open up incomes and expense newly and we close them at the end of the year. कभी भी इनकम एक्सपेंस को ओपनिंग बैलेंस नहीं होता. Income account and expense account never ever have opening balance. Why? Because at the end of each year हम उनको क्या करते हैं? We close them by transferring their balance to which account? Trading and profit loss account. क्यों करते हैं ऐसे? To find out profit. तो लिख लेना, income and expense account को हम close करेंगे. We will transfer their balances to which account? लिखो यहाँ पे, incomes and expenses account. Income expense account balances are transferred, are closed. Income expense accounts are balanced at the end of each year and closed. By transferring their balances in trading and profit loss account to find out what, madam? Profit. To find out profit. इसलिए हमेशा याद रखना, इसलिए बोलते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज्ड. एवरी ईयर हम उनको नए से ओपन करेंगे और एंड में क्या जाके करेंगे? क्लोज. तो कोई बोलेगा सर क्या फायदा, हम एंड में क्लोज ही करने वाले, तो क्यों ओपन करना? बराबर ना. एग्जांपल, तुम ब्रेकअप भी करने वाले तो रिलेशनशिप में क्यों आना? ऐसे हो गया. बराबर, राइट. सो व्हाट आई मीन, ऐसे नहीं होता है कि नहीं सर हम इनकम अकाउंट को ओपन करने वाले बाद में क्लोज ही करने वाले, एक्सपेंस अकाउंट को ओपन करके बाद में क्लोज ही करने वाले, तो क्यों ओपन करना उनको? लाइक आप सैलरी अकाउंट यूज करते हो और बाद में उसको P&L में डालते हो, तो क्यों सर सैलरी अकाउंट यूज करो? पहले ही P&L अकाउंट यूज करो ना. बट हमें डिसीजन मेकिंग के लिए हम अलग अलग इनकम अकाउंट एंड अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट ओपन करते हैं. तो हमें पता होता है सैलरी कितना है, वेजेस कितना है, फ्रेट कितना है, परचेस कितना है, सेल्स कितना है, कमीशन रिसीव कितना है. हम वी कैन टेक द डिसीजन. सो इंटेंशनली हम अलग अलग इनकम एंड अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट ओपन करते हैं फॉर आवर कंट्रोल पर्पस. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उनमें जो भी बैलेंस होगा हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग एंड P&L में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब उनको जीरो कर देंगे. सो बिगिनिंग में इनकम जीरो रहेगी, एंड में भी इनकम क्या होगी? जीरो. तो पूरे साल में जितनी इनकम होगी हमें पूरी मिल जाएगी. इनिशियल में जीरो है, आप सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या दिखाएगा? टोटल सेल्स ऑफ द ईयर. परचेस अकाउंट का बैलेंस क्या दिखाएगा? टोटल परचेसेस ऑफ द ईयर. सैलरी का बैलेंस क्या दिखाएगा? टोटल सैलरी ऑफ द ईयर. वेजेस का बैलेंस क्या दिखाएगा? टोटल वेजेस ऑफ द ईयर. तो वो सब अकाउंट इनकम एक्सपेंस उस ईयर के बैलेंसेस की बात कर रहे हैं. तो हमें उस ईयर के इनकम्स मिलेंगे, उस ईयर के एक्सपेंस मिलेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उस ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा. सो नेक्स्ट ईयर में कभी भी जब आप ओपनिंग एंट्री करते थे 11th में, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, इसमें कभी हमने इनकम एक्सपेंस अकाउंट नहीं बोला. क्यों नहीं बोला? बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर हमने उन अकाउंट्स को क्या किया है? क्लोज कर दिया है. क्या उनमें बैलेंस रखा है क्या? नहीं. इसलिए इनकम एक्सपेंस अकाउंट स्टार्ट्स न्यू एंड एंड में जो भी बैलेंस आएगा खत्म कर देंगे P&L में डाल के. समझ में आ रहा है? इसलिए उनमें क्लोजिंग बैलेंस कभी बचते हैं क्या? नहीं बचते. समझ में आ रहा है? ऑन द कॉन्ट्ररी assets and liabilities are never closed. assets and liabilities अकाउंट बैलेंस करते पर क्लोज नहीं करते मैडम. मतलब अगर कोई मेरे पास मशीनरी है, ध्यान देना, बहुत सिंपल एग्जांपल है. तुम्हारे पास मशीनरी में 10 लाख का बैलेंस है, वो मशीनरी इस ईयर में भी परचेस की जा सकती है या पहले भी होगी, वो चलती आ रही है लाइक दैट. बट सेल्स अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस है, मतलब वो इस ईयर का सेल, वो पहले का सेल नहीं हो सकता, बिकॉज लास्ट ईयर का सेल क्लोज किया होगा लास्ट ईयर के ट्रेडिंग एंड P&L में डाल के. परचेस अकाउंट में 8 लाख का बैलेंस है, तो इस ईयर के परचेस हो गए, लास्ट ईयर के परचेस क्लोज किए थे. कैपिटल में 20 लाख का बैलेंस है, वो पहले से चलता है, कभी बढ़ रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट वो करंट ईयर का नहीं है, वो क्यूमुलेटिव है. असेट्स एंड लायबिलिटीज क्यूमुलेट होते हैं, ईयर आफ्टर ईयर वो क्या होते हैं?
क्यूमुलेटिव करते जा रहे हो, इनकम एक्सपेंस हर ईयर के एंड में क्या करते हो, क्लोज। सो सैलरी में 5 लाख का बैलेंस है, इस ईयर की सैलरी हो। रेंट अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस है, इस ईयर की, वो पहले की नहीं है, क्योंकि वो पहले के आपने क्या किए होंगे, क्लोज किए होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी नेवर एवर क्लोज्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट इफ देयर आर बैलेंस। हाँ, खुद होके क्लोज होके बात अलग है। क्रेडिटर थे, राम क्रेडिटर था 2 लाख का, आपने पेड कर दिया उसको, तो क्लोज हो गया अकाउंट, ऐसे क्लोज होगा। असेट मशीनरी थी, सेल कर दी, वो गई क्लोज। बट अगर बैलेंस उसको क्लोज करोगे क्या? नहीं, लिख लेना। हम इसको कहां पे दिखाते हैं असेट्स लायबिलिटीज, बोलो मुझे। बैलेंस शीट। सो हमें क्या करना है फाइनल अकाउंट्स में, मैंने पहले ही बोला, ध्यान देना। वी हैव टू प्रिपेयर 2 थिंग्स इन द फाइनल अकाउंट। देखो हमें क्या करना है फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट करना है, किस लिए? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट करना है, किस लिए? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट ढूंढने के लिए कौन से 2 अकाउंट चाहिए? इनकम्स एंड एक्सपेंस। इनकम माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट, और एक्सपेंस माइनस इनकम इज लॉस। तो तुम्हें नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और नेट लॉस ढूंढना होगा। तो तुम्हें कौन से अकाउंट करने हैं? अगर हमें प्रॉफिट ढूंढना है तो हमें कौन से अकाउंट करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो वहां पे हम कौन से अकाउंट्स लेके जाएंगे? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। एंड हमें दूसरा क्या करना है? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढनी है। तो वो फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या ले ढूंढने के लिए हम क्या लेंगे? असेट्स एंड, तो 4 अकाउंट से 2 जगह पे गए। असेट लायबिलिटीज किस में गए? बैलेंस शीट में। इनकम एक्सपेंस किस में गए? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बट असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्चुअली क्लोज हो रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट। हम खाली क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। लिख लेना नीचे, assets and liabilities are shown. Asset and liabilities account are balanced at end of each year and never closed, but presented in, हम उनको प्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट। वी प्रेजेंट देम इन बैलेंस शीट। यहां तक क्लियर है? हम उनको बैलेंस शीट में क्या करते हैं मैडम? प्रेजेंट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसलिए वो क्लोज नहीं होते। इसलिए 31 मार्च पे जो असेट्स लायबिलिटीज है, बुक्स क्लोज होने के बाद हम क्या करेंगे? उनको नेक्स्ट ईयर में लेके आएंगे। इसलिए ओपनिंग एंट्री में क्या आता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लिख लेना, ठीक है। असेट्स एंड लायबिलिटीज कम्स इन द ओपनिंग एंट्री। जब आप ओपनिंग एंट्री करोगे ना, अरे इस ईयर की बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाएगी? इस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर की क्या हो जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट। इसी ईयर के बैलेंस शीट से नेक्स्ट ईयर में क्या डालोगे? ओपनिंग एंट्री डालोगे ना। इस ईयर के एंड में जो बैलेंस शीट बनेगी उससे तुम नेक्स्ट ईयर में जब फिर से टैली भी स्प्लिट करते हैं, जो तुम टैली बोलते हो ना, उसको भी स्प्लिट करते हैं ईयर बेसिस पे। ईयर खत्म हो गया, टैली को स्प्लिट करेंगे। समझ में आ रहा है? टैली सॉफ्टवेयर है, कंपनी एक ही है, टैली में एक ही कंपनी होगी। एक कदम एकेडमी, एक ही क्या रहेगी? कंपनी एक ही रहेगी टैली में, बट उसको हम स्प्लिट करते हैं। उसमें जब क्लिक करोगे ऐसे तुम्हें अलग अलग क्या दिखेंगे? ईयर्स। तो you split it and you open the accounts again, right? तुम कौन से अकाउंट्स ओपन करते हो? सब अकाउंट्स ओपन करते हो, बट बैलेंस किस में होते हैं? असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट लायबिलिटीज अकाउंट्स कम्स इन द ओपनिंग एंट्री। सो इस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट टू पास विच एंट्री? ओपनिंग एंट्री। तब एंट्री आएगी इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल लायबिलिटीज टू कैपिटल। एंड मैडम ये वाला हमें क्या करने? इनकम एक्सपेंस को क्या करने? क्लोज करने ना। इसलिए इनकम्स एंड एक्सपेंसेस कम्स इन क्लोजिंग एंट्री। उनको क्लोज करने की एंट्री हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। वी ट्रांसफर देम टू ट्रेडिंग, वी ट्रांसफर देम टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट,
उसकी जो एंट्री आती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। समझ में आ रहा है? तो असेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे कहां पे आएंगे? बैलेंस शीट में आएंगे। इनकम एक्सपेंसेस कहां पे आएंगे मैडम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। गलती से इनकम एक्सपेंस को अगर आप बैलेंस शीट में लिख रहे हो, यू आर मेकिंग ए ब्लंडर। यहां तक क्लियर है नहीं है? बोलो मुझे। एनीवन हैज डाउट? लिख लेना। कोई कस में, ये तुम्हारे लाइफ लॉन्ग है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी आप फाइनल अकाउंट्स करोगे, 12th में खाली फाइनल अकाउंट्स करना है, एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें जर्नल एंट्रीज है, बाकी हर जगह पे क्या है? फाइनल अकाउंट। हाँ, डिसोल्यूशन में फाइनल अकाउंट्स नहीं करना है, बिजनेस को क्लोज करना है। तो क्लोज करोगे तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी ना। बिजनेस को सेल कर रहे हो, असेट्स को सेल करोगे, लायबिलिटीज को पे करोगे। सो एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन, बाकी हर जगह पे हमें फाइनल अकाउंट्स करना है। समझ में आ रहा है? इवन कंपनीज में हम बैलेंस शीट करते हैं बट फाइनल अकाउंट्स नहीं करते। बैलेंस शीट हम P&L वगैरह नहीं करते कंपनी का, खाली हम बैलेंस शीट करते हैं। तो जहां जहां पे तुम्हें करना है, एनपीओ रहेगा, लाइफ में आप हर जगह पे, अभी तो तुम्हारी लाइक करियर का स्टार्ट हुआ है या तुम एजुकेशन स्टार्ट हुआ है, हर चैप्टर में फाइनलाइजेशन ऑलमोस्ट रहता है। तब ये हमेशा रूल से याद रखना, फर्स्ट एवरी आइटम ऑफ tallied information provided in the question, given in the question, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, रिगरसली फॉलो करना है, ठीक है? एवरी आइटम ऑफ टैलीड इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन में जो टैलीड चीज है, लाइक ट्रायल बैलेंस टैलीड होता है। जब आप एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स करेंगे, उसमें रिसेंट पेमेंट अकाउंट देते, कैश बुक देते हैं, क्या देते हैं? कैश बुक। वो भी टैलीड होता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। बराबर? समझ में आ रहा है? जो भी टैलीड इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटर डेट में बैलेंस शीट देते, एडमिनिस्ट्रेटर डेट में बैलेंस शीट देते, वो टैली होगी। तो जो तुम्हारे क्वेश्चन में टैलीड इंफॉर्मेशन होगी, इट कैन बी ट्रायल बैलेंस, इट कैन बी रिसेंट पेमेंट, इट कैन बी बैलेंस शीट इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? Any tallied information, every item of tallied information given in the question has how many effects? Has one effect in your answer. वो तुम्हारे आंसर में कितने, या तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स में कितने जगह पे आएगा? एक जगह पे आएगा। That one place can be even working note. Working note are also part of your answer, right? Yes. Second, every item of untallied information, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन अनटैलिड होती है, मतलब जिसको तुम बोलते हो एडजस्टमेंट्स। दैट इज एडजस्टमेंट्स। Every item of untrade information, that is adjustments, has how many effects? Minimum 2. Actually minimum word होना चाहिए, like goods lost by fire and claim received, partial claim है तो उसके 3 इफेक्ट आते थे, थोड़ा फॉर 11th याद है तो। सी फाउंडेशन में 4 एडजस्टमेंट की एंट्री है, गुड्स पेंडिंग फॉर अप्रूवल विद कस्टमर्स, ऐसे एंट्री होती है, उसके 4 इफेक्ट आते हैं, ठीक है? मतलब minimum 2 effects in answers, in answer, right? Having debit equal to, वो 2 इफेक्ट कैसे रहेंगे? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। मैं एग्जांपल देता हूं, हम करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट आती थी? कोई मुझे बोलेगा क्या 11 का थोड़ा पर
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा पता रहेगा मैडम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की क्या एडजस्टमेंट आती थी, मैं एक बोल सकती हूँ एक्सपेंसेस में ऐड एंड लायबिलिटी में ऐड। एक्सपेंस में ऐड करना है मतलब क्या करना है बोलो मुझे। अभी हमने देखा एक्सपेंस में ऐड करना है मतलब क्या करना है बोलो मुझे। एक्सपेंस अकाउंट में ऐड करना है मतलब क्या करना है, डेबिट बराबर। एक्सपेंस में ऐड करना है मतलब डेबिट, और क्या बोला लायबिलिटी में भी ऐड। लायबिलिटी में ऐड करना है मतलब क्या, लायबिलिटी एक्सपेंस में एक्सपेंस को इंक्रीज करो और लायबिलिटी को करो, होगा क्या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अच्छा एग्जांपल डेप्रिसिएशन का क्या करते थे, याद है डेप्रिसिएशन सबसे सिंपल एडजस्टमेंट, एसेट से माइनस, एसेट को कम करना है ना, एसेट को कम करना है मतलब उसके डिक्रीज साइड, मतलब कौन सी साइड, एसेट को क्रिएट कर रहे हो और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में ऐड करते थे मतलब क्या करते थे, एक्सपेंस में ऐड मतलब क्या, इंक्रीज इन एक्सपेंस ना। तो एसेट को क्रिएट कर रहे हो और एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हो, है क्या दो इफेक्ट बराबर, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। ऐसे इफेक्ट हो ही नहीं सकते खाली डेबिट डेबिट या खाली क्रेडिट क्रेडिट, ये पॉसिबल ही नहीं है। So every adjustment has minimum how many effects? 2 effects in such a way that debit equal to credit. सिंपल वर्ड्स में आप एक्सपेंस में ऐड कर रहे हो मतलब डेबिट कर रहे हो क्रेडिट कर रहे हो, डेबिट। एक्सपेंस से माइनस कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, क्रेडिट। एक्सपेंस में ऐड कर रहे हो मतलब डेबिट, एक्सपेंस से माइनस कर रहे हो मतलब क्रेडिट। अरे एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो ऐड करोगे तो डेबिट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो तो क्रेडिट। इनकम में ऐड कर रहे हो, इनकम क्रेडिट होते हैं, उसमें ऐड कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, क्रेडिट। इनकम से माइनस कर रहे हो मतलब डेबिट। असेट्स डेबिट होते हैं बराबर, असेट्स में ऐड कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, डेबिट। असेट से माइनस कर रहे हो मतलब क्रेडिट। लायबिलिटीज क्या होते हैं, क्रेडिट। लायबिलिटीज में ऐड कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, क्रेडिट। एंड लायबिलिटीज से माइनस कर रहे हो मतलब डेबिट। ये फंडामेंटल पता होने चाहिए। अगर आपको कहां पे डाउट है क्या मैंने बराबर इफेक्ट दिया है, यू कैन चेक डेबिट एंड क्रेडिट। समझ में आ रहा है। एंड थर्ड जो कहां पे लिखा नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, डेबिट इन क्वेश्चन remains debit in your final accounts or in answer, and credit in question right, credit in question remains what, बोलो मुझे, क्रेडिट इन आंसर। अगर वो डेबिट है तो तुमने डेबिट पे ही लिखना है, अगर वो क्रेडिट है तो क्रेडिट पे, डेबिट का आइटम क्रेडिट पे नहीं लिखना है, क्रेडिट का आइटम डेबिट पे नहीं, तो डबल का डिफरेंस हो जाता है। डेबिट का आइटम क्रेडिट पे लिखो तो डबल का डिफरेंस हो जाता है, या क्रेडिट का आइटम डेबिट डबल का डिफरेंस हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अगर ये तीन चीजें फॉलो करोगे ना रिगरसली तो तुम्हारी बैलेंस शीट डेफिनेट टैली होगी। भगवान कृष्ण भी आके बोलते हो ऐसे नहीं करना है तो भी नहीं सुनना है, इतना रिगरसली फॉलो करना है। दिस 3 थिंग्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बेस है तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स का, किसी भी टाइप्स के फाइनल अकाउंट्स। समझ में आ रहा है। हाँ ऑब्वियसली डेबिट इन ट्रायल बैलेंस रिमेन्स डेबिट इन द फाइनल अकाउंट्स, और क्रेडिट इन द ट्रायल बैलेंस रिमेन्स क्रेडिट इन द फाइनल अकाउंट्स। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, लाइक परचेस रिटर्न, परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या रहेगा, क्रेडिट। उस क्रेडिट को हम डेबिट से माइनस करते हैं, डेबिट से माइनस कर रहे हैं मतलब क्रेडिट, डेबिट से माइनस करना मतलब ही क्या, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स इनकम है, क्रेडिट रहता है, तो सेल्स रिटर्न क्या रहेगा, डेबिट। उसको हम सेल्स से माइनस करते हैं ना, सेल्स से माइनस कर रहे हैं मतलब डेबिट, मतलब वो डेबिट क्रेडिट ही है। बट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन परचेस रिटर्न को परचेस से माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न को सेल्स से माइनस करते हैं, एंड ड्रॉइंग्स जो डेबिट है उसको लायबिलिटी कैपिटल से क्या करते हैं, माइनस। डेबिट ही कर रहे थे ना, डू यू रिमेंबर कैपिटल अकाउंट, डेबिट 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 ही हो रहा है इसका मतलब। सो ऐसे रूल ब्रेक कभी नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो डेबिट इन द ट्रायल बैलेंस रिमेन्स डेबिट इन योर आंसर, credit in the trial balance remains credit in your answer. Every item of tallied information trial balance has one unique effect, and every item of adjustment has minimum 2 effects in such a way that debit is equal to credit. यहां तक क्लियर है।
आज मैंने एकदम बेसिक चीजें ली, अब मेरा लेक्चर मंडे को होगा, राइट? मंडे को वी विल स्टार्ट विद फाइनल अकाउंट्स, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्या, P&L अकाउंट क्या, बैलेंस शीट क्या, ये सब डिस्कशन होगा अलॉन्ग विद द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, समझ में आया? किसको डाउट है अभी भी? राइट, दिस इज अ टाइम जो 11 से दिस इज टाइम टू कंसोलिडेट द कांसेप्ट्स। तुम लोगों के कांसेप्ट बेस है, नाउ यू हैव टू कंसोलिडेट, मतलब इतना परफेक्शन आना चाहिए ना, तुम्हें आगे डर ही नहीं रहना चाहिए किसी भी फाइनल अकाउंट्स का। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले समझा क्या? ऑनलाइन वाले? Yes, sir. Yes, sir. गुड, चलो, राइट, मैथ्स का लेक्चर होगा 10 मिनट में। थैंक यू।